اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاروان شعر و سخن کینیڈا کے زیر اہتمام آج کی اس خوبصورت محفل میں تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید. 20 نومبر فیض احمد فیض کا یوم وفات ہے اور اسی نسبت سے اس عظیم انقلابی شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. آج کے پروگرام کی صدارت قابل صد احترام محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب فرمائیں گے. میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہ صدارت کا رونق افروز ہوں اور ہمیں مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت عنایت فرمائیں. جی بسم اللہ کریں گے، شروع کریں. شکریہ. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گرو بابا نانک صاحب کا یوم پیدائش تھا کل، تو میں تمام سکھ برادری کے ممبران کو بلکہ سبھی کو بابا گرو نانک جی کے جنم دن کی مبارکباد دیتا ہوں. یہ مشاعرہ اردو پنجابی وچ رکھیا ہے، اس لیے اردو اور پنجابی اسی نال نال بول دے رہاں گے. بہت بہت شکریہ حمید بھائی. تو میں حمد و نعت سے آغاز کرنے کے لیے گزارش کروں گا شہزادہ مبشر صاحب جو کہ گلاسکو سے ہمارے ساتھ شامل ہیں کہ وہ حمد و نعت کے اشعار پیش کریں. جی شہزادہ مبشر صاحب. جی سب سے پہلے اس محفل کے سامعین کو، حاضرین کو محبت بھرا سلام، نمستے، آداب اور ست سری اکال. میرا پیام خدا کرے ہر ایک کو ہو جائے دل نشین، مبشر کے کلام میں مضمر ہے جو پیام. جی سب سے پہلے حمدیہ کلام سے چند اشعار. چرخ پر مہر ہو تیرا کہ ستارہ تیرا رات دن دیکھتا رہتا ہوں اشارہ تیرا. میں جو تیرا ہوں تو حاصل یہ یقین ہے مجھ کو ہر نفس ہے میری ہستی کو سہارا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ. اپنے جلووں سے تو ذرات منور کر کے وہ نظر دے جسے حاصل ہو نظارہ تیرا. زندگی ایک سمندر ہے کہ جس میں ہر دم کشتیاں ڈھونڈتی رہتی ہیں کنارہ سبحان اللہ. تیرے اندر
ہموار سے روشن تو ہے آنکھیں میری، ہر کسی کو پہ روشن ہو شرارہ کیا بات، کیا بات. تیرا واہ واہ سبحان اللہ. ہم وہ بے بس ہیں کہ لمحوں کا مبشر ہم کو تیری جانب لیے جاتا ہے یہ دھارا واہ بھائی واہ، تیرا. واہ واہ واہ. شکریہ صدر صاحب. آئینہ در آئینہ پھرتا ہے جلوہ واہ آپ کا، جگمگاتا ہے میرے دل میں سراپا آپ کا. کیوں میں اس دنیا کے آلام و مصائب سے ڈروں، مجھ کو اے یثرب کے والی ہے سہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت خوب. سبحان اللہ. آنکھ جھپکی ہو گیا تقسیم دو حصوں میں چاند، بے شک میرے حیرت کر گیا سب کو اشارہ آپ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا جچے گا میری آنکھوں میں یہ حسن کائنات، میری آنکھوں میں ہے بس روئے دل آرام آپ کا. آرزو دل میں مبشر کے یہی ہے رات دن، در ہمیشہ کے لیے مل جائے شاہ آپ کا. شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ. بہت عمدہ اور خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. اور ہماری یہ روایت ہے کہ جو تنظیم کے صدر ہیں وہ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، تو میں بشارت صاحب سے گزارش کروں گا، بشارت ریحان صاحب سے، کہ وہ اس روایت کو نبھائیں اور چند الفاظ کہیں مہمانوں کے لیے. بہت شکریہ جناب حمیدی صاحب.
میں اپنے تمام مہمانوں کا تہ دل سے ممنون ہوں، بالخصوص ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب جو اس محفل کی صدارت فرمائیں گے، اور اسی طرح میں خالد رؤف قریشی صاحب جو اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں، تہ دل سے ممنون ہوں۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی پیارے چاہنے والے ڈاکٹر منور کنڈے صاحب ہیں، وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ہمیں عزت بخشتے ہیں۔ تو میں اپنی بہن سندر پال راج صاحبہ کا بھی اور بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی وقت نکالا، حالانکہ کسی اور محفل میں بزی تھیں۔ تو میتا کھنہ جی کے لیے بھی تہ دل سے ممنون ہوں۔ اسی طرح محترمہ ڈاکٹر عبیدہ بطول صاحبہ وہ بھی تشریف لائیں گی اسی محفل میں، اور ہمارے گزارش پہ ڈاکٹر سعدیہ بشیر صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں۔ جناب شعیب ناصر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، وہ ہمیشہ اب محبتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے پروگراموں میں ماشاءاللہ کافی بیزی ہیں۔ اسی طرح میں محترمہ صبیہ خان صاحبہ وہ پاکستان گئی ہوئی ہیں، انہوں نے وہاں سے ہمیں شامل ہوئی ہیں۔ اسی طرح جناب ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب ہیں، محترم مبشر شہزاد صاحب نے بہت خوبصورت کلام سنایا اور بہت محفل کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے کلام میں بھی برکت ڈالے، اور آواز تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دی ہوئی ہے۔ تو جناب شائق نصیر پوری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے۔ جناب شاہد تسنیم باجوہ صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے۔ محترمہ نجمہ محبوب صاحبہ پاکستان اوکاڑا سے ہیں، وہ بھی تشریف لائی ہیں۔ اسی طرح میں جناب انصر رضا صاحب اور قابل سلمان اطہر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں زیادہ وقت نہیں لیتا اس لیے کہ محفل تھوڑی لمبی نہ ہو جائے، دوستوں نے جانا بھی ہوتا ہے۔ تو میں جناب حمیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ محفل کو صاحب صدر کی اجازت سے محفل کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ جناب شارد صاحب، بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ احباب خواتین کے علم میں ہے کہ آج کا مشاعرہ انقلابی شاعر فیض احمد فیض صاحب کی یاد میں ہے، اور اسی مناسبت سے میری درخواست ہے کہ محترمہ نجمہ محبوب صاحبہ کے کاڑے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں کہ وہ فیض احمد فیض کے بارے میں ایک مختصر سا مقالہ ہے وہ پیش کریں گی۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مقالہ پیش کریں۔ نجمہ محبوب صاحبہ۔ شکریہ بہت بہت۔ سب سے پہلے سب کو السلام علیکم۔ آج کے دن کی مناسبت سے یہ کچھ تھوڑی سی لائنیں ہیں فیض احمد فیض صاحب کے لیے۔ عنوان ہے اس کا فیض احمد فیض ادب فیض۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو مردم خیز شہر اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ میں سلطان اور سلطان فاطمہ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا نام فیض احمد خان رکھا جاتا ہے، اور یہ بچہ آنے والے وقت میں اردو ادب کا درخشندہ ستارہ بنتا ہے۔ فیض احمد فیض ادب کا فیض عام، جس کے ادبی فیض سے میں، آپ اور ہم سب کسی نہ کسی طرح سے ادبی میراث سمیٹ رہے ہیں۔ فیض نے 1915 اور 16 میں سے قرآن کی تعلیم سے ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا، تو یہ سلسلہ 1921 میں اسکاچ مشن ہائی اسکول سے شروع ہوا، اور پھر 1933 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا، اور 1934 میں اورینٹل کالج سے ایم اے عربی امتیازی نمبروں سے پاس کرتے ہیں۔ تعلیم کا یہ سلسلہ جاری و ساری اس طرح سے رہا، اور اس تدریس کے سفر میں شمس العلماء مولوی سید میر حسن، یوسف سلیم چشتی، احمد شاہ بخاری، پروفیسر ینگ ہارن، پروفیسر ڈاکٹر صدر الدین مرحوم، صوفی تبسم، مولوی محمد شفیع جیتو زیرک اور جوہری اساتذہ کے ہاتھوں ایسا تراشا ہوا ہیرا بنتے ہیں کہ ڈاکٹر تاثیر، مولانا سالک، مولانا چراغ حسن حسرت کی ادبی وابستگی میں فیض کی ذات کے نہا خانوں سے ادبی ذوق کی ایسی شفق کرنیں پھوٹتی ہیں جو ادب کے ان دریچوں سے کسی منشور کی طرح روشنی کے سارے رنگ بکھیرتے ہیں کہ آج اردو ادب میں وہ کسی شاہکار فن پارے کی حیثیت سے مزین ہے۔ حروف کے سانچوں میں تخیل امیزی کی نکھرتی پھوار میں عشق و محبت کی رانائی، وصل و ہجر کی راحت اور سرشاری کے ساتھ ساتھ جب زمانے کی طبقاتی حقوق کی پامالی، وسائل کی غیر مساویانہ تقسیم، عدل و انصاف کی
तनज़ुली, जाबिराना और आमिराना हाकमियत में पिस्ते मजबूर और महबूस लोग हमदर्दी और गमगुसारी के कहत में पलते बेहिस व बेमुरब्बत सफाक जज्बों को फैज अहमद फैज दाखिली और खारजी मुशाहिदात और तजर्बात में जब लिखता है तो फिर कैदोबंद की सोबतें और जिंदान के शब रोज तो मुकद्दर होना ही है। फैज हिम्मत नहीं हारता, बल्कि फैज की शायरी में हमें आज़ादी फिक्र, आज़ादी इज़हार, एहतराम आदमियत और इंसानी इक़दार की बहाली और पासदारी जैसे अनासिर एक नजरिए की सूरत में मिलते हैं। फैज की शायरी में एक ऐसी कशिश और दिलकशी है कि इसकी नजरियाती हामी ना होते हुए भी इसकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसकी शायरी हर खासो आम में पसंद की जाती है। रुमानियत के पर्दे में हकीकत का रंग झलकता है। दान में की गई शायरी महबूब की यादों की यलगार में बहकाती नहीं है, बल्कि अदब को एक नए पिराया में समोती है। दस्ते सबा की शायरी उम्दा मिसाल है इसकी, जो कैदो बंद की सोबतों में लिखी गई। फैज दस्ते सदा के दबाचे में लिखते हैं, जेल खाना आशिकी की तरह खुद एक बुनियादी तजुर्बा है, जिसमें फिक्र नजर का एक नया दरीचा खुद ब खुद खुल जाता है। महबूब की यादें इसकी शायरी का खुसूसी और इम्तियाजी अंदाज है, जिसे वो मुतहर्रिक तमसीलों से कुव्वते तखय्युल को पुरनम और रंगीन जिंदगी से मुज़य्यन कर देते हैं। फैज आवाज को झंझोड़ते हैं। जिंदान में महबूब की यादों से वो रनाई और रजाई फिक्र अख्तियार करते हैं कि एक मुनफरिद रंग नजर आता है। फैज की शायरी रोमान और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। तरक्की पसंदाना ख्यालात के हामिल रोमानियत के असीर फैज हमें जबरो इस्तबदाद के खिलाफ नबरदस्मा होते नजर आते हैं। कैदोबंद की सोबतों से घबराते नहीं हैं। फैज की शायरी रजायत और उम्मीद का दर्स देती है। वो मायूसियों और नाकामियों के अंधेरे के बासी नहीं है, बल्कि इन दिल बर्दाश्ता हालात में भी महबूबियत की कैफियत और सरूर को इस अंदाज में बयान करते हैं कि हिज्र वसाल का एक ऐसा तालमेल बनता है कि जमाने के गम महबूब की यादों से गाफिल करते हैं। फैज असरे हाजिर की हकीकतों से मुनकिर होते हैं। वो गमे दाहिर को गमे महबूब के साथ यूं मिलाते हैं कि दोनों का मिलकर एक ऐसा मुकम्मल इंसान तश्कील देते हैं जो जिंदा है, जिंदान में है, जिंदगी के अलमो गम बरोज की कारस्तानियां सहता है, जिंदगी की तलखियों और हकीकतों पर रोता है, तो महबूब का तसव्वुर आंसू की बेहुरमती करता है, हंसकर गम को सहता है। इसीलिए तो वो फैज है जो दरमंदा दिलों को धड़कन देता है। फैज अदब फैज अहमद फैज आज भी हमें मौजूद है। मैं समझती हूँ कि अगर ये कहा जाए कि फैज के खारजी कैफियत में दाखिली कैफियत को पसीपुश्त नहीं डाला, फैज ने खारजी कैफियत में दाखिली कैफियत को पसीपुश्त नहीं डाला, बल्कि दाखिली कैफियत को खारजी मज़ाहिर की तलखियों में वो पैरहन दिया है कि फैज ने जो ज़ाहिरी और बातनी सांचों में जो तखय्युल अमेज़ी की है तो शाहकार तखय्युलात से नवाजा है। उर्दू अदब फैज के करीने से निखर कर हम तक पहुंचा है और आज इसकी याद में मैं, आप और हम सब यूं मिल बैठे हैं। मैं थोड़ा सा मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ और मेरे पास कुछ हवाला जात हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने फैज के बारे में कहे, तो वक्त की पाबंदी क्योंकि मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया गया था, तो फैज की अभी मैंने किताबों का भी तारुफ बताना है और वो भी, तो मैं इसको फैज ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे नक्शे फरियादी है, दस्ते सबा, जिंदाननामा, दस्ते संग, सरवादे सीना, यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मुस्काए हाय वफा का मजमुआ है। इसी तरह से नसर में भी
फैज अहमद फैज ने बहुत काम किया है, बहुत मतलब कि इस तरह से कि जितना भी उन्होंने किया है बहुत उम्दा किया है, और दूसरे अदीबों की तरह उन्होंने नहीं लिखा। उनका है कि मिजान, ये तनकीदी मज़ामीन की एक किताब है उनकी। इसी तरह से सलीबे मेरे दरीचे में, ये खतूत हैं जो वो अपनी कैद के दौरान में और दूसरे हालात में अपने लिखते रहे। फिर मताए लोह कलम है, और पाकिस्तान साइन के अदारिये हैं। नज्म याद, फिर जिंदान में एक है, मैं वो एक लफ्ज स्किप कर रही हूँ इधर से, तो वो भी, ये दोनों चीजें उनकी जो हैं, ये उनकी कैद के दौरान जो शायरी है उसकी नुमाइंदा नस्में हैं। इसी तरह से उनकी शायरी को अगर हम देखें तो उन्होंने नज्म और नस्र दोनों में ही लिखा है। उनकी नज्म में जो अपनी नज्म में और गजल में जो हैयतें वो इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने रवायती भी इस्तेमाल की हैं, और जो जदीदियत थी उसमें भी उन्होंने काम किया। फिर तमसील, मतलब कि उनकी शायरी में हमें अलामत भी मिलती है, मिसालें भी मिलती हैं, और वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने खराज अकीदत पेश किया है, और बड़ा रिसर्च करके ये मुकाला आपने ढूंढा और मतलब तैयार किया। तो जज़ाकुमुल्लाह ताला असनल जज़ा। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि अभी बात हुई, मोहतरम गुरु बाबा नानक जी दी जड़ी तकरीबात है दुनिया हर जगह मनाई जा रही ने, ते साडी मेहमाने खसूसी सुंदरपाल राजा संसी साहबा ने भी, जिस तरह के उन्होंने अपॉइंटमेंट है, किसी होर जगह कमिटमेंट भी है, उन्होंने जाना है, लेकिन साडे नाल वादा कीता सी कि जरूर वो तशरीफ लैणगियां, ते वो तशरीफ ले आए। उन्होंने बहुत शुक्रिया। मुख्तसर तारफ यह है कि वो भी बेसिकली एक प्रोफैशन के लिहाज ਨਾਲ टीचर ने, शायरा, एंकर, समाजी खिदमतगार, औरतों के हकूक के वास्ते वो सब तो अगे उन्होंने दियां 2 किताबां ने, रूह दे बोल ते ना धीआं नू रोल। मैं उन्होंने दावते कलाम दिना, सुंदरपाल राजा संसी साहिबा जी अपने कलाम से नवाजे। हाँ, सदर साहिबा की इजाज़त चाहती हूँ। सबसे पहले सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार, आदाब के सत श्री अकाल। तो सभी को सबसे पहले गुरु नानक देव जी के 552 में प्रकाश उत्सव पर सभी को बधाई देना चाहती हूँ, और ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी मोहब्बत हमारे तो है, पर आपके तो बहुत आप भाग्यशाली हैं, बहुत ही आप लकी हैं जो पाकिस्तान में बाबा नानक के सभी जगह बनी हुई है, उनका जन्म स्थान भी उधर ही है। तो आप तो कितने लकी होते, उधर जाते। हमें तो एक बार भी अभी जाने का मौका नहीं मिला, और इंशाल्लाह खुदा जल्दी मुझ पर भी रहमत करे तो कि मैं बाबा नानक की धरती को नतमस्तक हो सकूं। और सभी को बढ़ाई। एक छोटा सा कलाम बाबा नानक के लिए, फिर मैं फैज अहमद साहब के लिए छोटी सी बात करूंगी। जी जी, हम थोड़ा सा देख ले। बाबा नानक आया, नानक आया, नूर ले आया, नूर ले आया। बाबा नानक आया, नानक आया, नूर ले आया, नूर ले आया। कल युग दे विच अवतार लिया, चानन पैर पसार लिया। चमक उठी सब पास काया, नानक आया, नानक आया। धर्म दी किरत ही करनी है, जप जप नाम कमाई करनी। वंड छकना भी नाल सिखाया, नानक आया, नानक आया। खेती हरी भी कीती सी, मजियां नाल पाई परीती सी। ताइयों सप्पां कीती सिर ते छाया, नानक आया, नानक आया। हक किसे दा मारना नहीं, गरीब पैरां बिच लताड़ना नहीं। बुरी है पाप कमाई माया,
नानक आया नानक आया वाह जी वाह। करतार की कीती सी नानक दी सब दे नाल प्रीति सी पाल बाबे हल चलाया नानक आया नानक आया बहुत नानक बढ़िया। आया नानक आया। वाह वाह वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फैज अहमद साहब की उर्दू की शायरी की अजिही शख्सियत सन जो अज भी अपनी शायरी नाल हर प्रेमी के अंदर जिंदा बस रही है। सो हम फैज अहमद साहब को भी हम शारदा की फूल भेंट कर रहे हैं। तो कोशिश करूंगी उनकी एक नज़म मैं तरन्नुम में कुछ कह पाऊँ, मुझे माफ करना उर्दू में हो सकता मैं बड़ी अपने जी जान से कोशिश करूंगी। और मेरा मन कर रहा है कि फैज अहमद फैज साहब की एक कलाम के साथ आपके साथ मैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अब भी दिल कच है तेरा हुसन मगर क्या कीजिए मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। पता नहीं उर्दू के साथ कुछ बेइंसाफी नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बल्कि ज्यादा अच्छा लगा। शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारी महफिल को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। तो अब आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। तो हस्बे रिवायत अब सदर साहब की इजाजत से मुझको सुनना पड़ेगा आप सबको। अच्छा, तो आपको भी सुनना है। हाँ जी। मैं पहले फैज के 2-3 अशार तरन्नुम से पेश करूंगा और उसके बाद अपनी ये गजल। जी वो भी तरन्नुम थे। जी जी इंशाल्लाह। तरन्नुम दर तरन्नुम, तरन्नुम दर तरन्नुम। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले फूलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा वाह वाह हमारे अश्क तेरी आकबत सवार क्या कहने, वाह 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 वाह
لشکری عاقبت سوال چلے. واہ واہ بہت خوبصورت. عشق تیری عاقبت سوال. عاقبت سوار چلے. واہ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو. کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. کیا واہ واہ. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. واہ حمیدی صاحب واہ ماشاء اللہ. رنگ بھرے باد نو بہار چلے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بہت بہت. اب میں اپنی ایک غزل بہت اندشار پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت ہے ننو. جزاک اللہ. میں کس سے کروں بات, میں کس سے کروں بات, میرا چاند کہاں ہے. کیا بات ہے جناب. سے کروں بات. واہ واہ کیا بات. میرا چاند کیا بات. کہاں بہت خوبصورت. کوئی عید نہ شب رات, کوئی عید نہ شب رات, میرا چاند کہاں ہے. کہاں ہے. کیا ردیف اٹھایا. واہ 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 واہ. سے کروں بات, خوش رنگ کھلے پھول نہ مہکی ہیں ہوائیں. خوش رنگ کھلے پھول نہ مہکی ہیں ہوائیں. گلشن پہ ہے صدمات, میرا چاند کیا خوب حمیدی صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے. گلشن پہ ہے صدمات, میرا چاند کہاں ہے. میں کیسے کروں بات. بہت عمدہ بہت عمدہ. شکریہ. چپ بانسری کی لے ہے تو کوئل نہ کوکتی. چپ بانسری کی لے ہے تو کوئل نہ کوکتی. سوز نہ نغمات, کچھ سوز نہ نغمات, میرا چاند کہاں سے کروں بات. اور یہ کرونا کے بارے میں ایک شعر. ایک کتاب عرضی ہے ذرا باغی و سرکش,
ایک دعوی عرضی ہے ذرا باغی و سرکش بکھرا گیا ظلمات واہ 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 میرا چاند کہاں ہے بہت خوب واہ جی واہ میں کیسے کروں بات صدیوں میں یہ تاروں بھری بارات سجی ہے صدیوں میں یہ تاروں بھری بارات سجی ہے اے چودھویں کی رات میرا چاند چودھویں کی رات میرا چاند بہت صدیوں میں یہ تاروں بھری بارات سجی ہے کیا بات اے چودھویں کی رات میرا چاند کہاں ہے میں کیسے کروں بات خوش رہیں واہ کچھ ہوش کرو اہل خرد وقت جنوں ہے کچھ ہوش کرو اہل خرد وقت جنوں ہے اب بدلے ہیں حالات میرا چاند کہاں ہے بہت شکریہ میں کیسے کروں بات پلتی ہے نہاں خانے میں حسرت یہ حمیدی پلتی ہے نہاں خانے میں حسرت یہ حمیدی ایک دید کی سوغات میرا چاند کہاں ایک دید کی زبردست بہت شکریہ میرا چاند پلتی ہے نہاں خانے میں حسرت یہ حمیدی ایک دید کی سوغات میرا چاند کہاں ہے میں کیسے کروں بات اور مقطع ہے کچھ بھی نہیں اب پاس سوا اس کے حمیدی کچھ بھی نہیں اب پاس سوا اس کے حمیدی ایک دیدائے نمناک میرا چاند کہاں ہے میں کیسے کروں میں کیسے کروں بات بھائی بات کو بہت میلہ لوٹ لیا جی ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ
पजीराई का बहुत शुक्रिया पसंदीदी। अब हमें बस्ता लपेट देना चाहिए मेरे ख्याल में। हम आगे इसके बाद माशाल्लाह सलमान भाई अभी और बड़ा ऊंचा सेट कर दिया भाई हमीदी साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चले मुशायरे को आगे चलाते हैं। तो जो भी तुझ पे निसार होता है बेड़ा उसी का पार होता है, और उसकी तकदीर धूप में जलना, पेड़ जो सायादार होता है। दावत कलाम है 2 किताबों के खालक जो कि लंदन यूके से हमारे साथ शामिल हैं। मुहतरम जनाब शाइख नसीर पुरी साहब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम सदर साहब की इजाजत से पहले 2-3 शेर फैज अहमद फैज के जी इरशाद। और उसके बाद अपनी एक छोटी सी गजल अर्ज करने की गुजारिश है। फैज अहमद साहब लिखते हैं कि फैज तकमीले गम भी हो न सकी, फैज तकमीले गम भी हो न सकी, इश्क को आजमा के देख लिया। इश्क आजमा के देख लिया। और एक शेर है कि लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। वाह वाह वाह। और एक छोटे सी बैर का शेर है कि हिजर की शब तो कट ही जाएगी, हिजर की शब तो कट ही जाएगी, रोज़े वस्ले सनम की बात करो। क्या है फैज अहमद फैज के इन 3 अशार के बाद मेरी एक छोटी सी गजल। अखलास व मोहब्बत के खरीदार रहेंगे, अखलास व मोहब्बत के खरीदार रहेंगे, हम लोग सदा रौनक के बाजार। बहुत उम्दा। हम लोग सदा रौनक बाजार रहेंगे। क्या बात, क्या बात। बाजार रहेंगे। वाह वाह। ख्वाहिश न कभी रखेंगे हम जाहो हशम की, ख्वाहिश न कभी रखेंगे हम जाहो हशम की, है इश्क सदा तेरे तलबगार रहेंगे। सदा तेरे तलबगार रहेंगे, सदा तेरे तलबगार रहेंगे। किरतास कलम से सदा रखेंगे ताल्लुक जी। किरतास कलम से सदा रखेंगे ताल्लुक, फनकार थे फनकार हैं फनकार रहेंगे। फनकार थे फनकार हैं फनकार रहेंगे। दुनिया की हवा चाहे जिधर जाए मगर हम, दुनिया की हवा चाहे जिधर जाए मगर हम, है दोस्त सदा तुझसे वफादार। बहुत अच्छा। दोस्त सदा तुझसे वफादार रहेंगे। वाह वाह बहुत खूब। और मकदार है कि कुछ गम नहीं शाइक के
बदल जाए जमाना, कुछ गम नहीं शायक के बदल जाए जमाना, लोग सदा साहिबे किरदार वाह नसीर साहब, वाह वाह। लोग सदा साहिबे किरदार रहेंगे, क्या तो मोहब्बत के खरीदार रहेंगे, हम लोग सदा रौनक के बाजार रहेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नहंगे दीनो सियासत जे अहले मकरो फरेब, बज़ों में खुद हैं यही लोग बरगजीदा भी, हमारी फाका कशी का सबब ये अहले करम, हमारी फाका कशी पर हैं आप दीदा भी। दावत कलाम है, मुहतरम शाहिद तस्नीम बाजवा साहब टोरंटो से हमारे साथ शामिल हैं, तो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमीदी साहब आपका इनवाइट करने का, मुझे आज मौका मिल रहा है इतने माशाल्लाह साहब जो है वो बैठने का और शेयर करने का। डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब से मेरा पहला तारफ़ उस वक्त हुआ जब मैं अपनी मादर इल्मी के पहले दिन मुझे मीनार रसाला मिला, उसमें गज़ल मेरी नज़र से गुजरी, उसका एक शेर मुझे आज तक याद है, हम तो पीछे रह गए लेकिन रकीबों के तफैल, उस गली में मेरे अफसाने गए। उसके बाद गाहे बगाहे नाम तो देखते रहे, लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे ये शर्फ हासिल हो रहा है कि मैं खुद डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब की इजाज़त से एक ताज़ा गज़ल पेश करता हूँ। इरशाद माशाल्लाह, बड़ा याद रखा। जो सच पूछो तो मैं फतवों से तकफीरों से डरता हूँ। जो सच पूछो तो मैं फतवों से तकफीरों से डरता हूँ, खुदा के नाम पे मुल्ला की ताजीरों से डरता हूँ। फिर पढ़िए जनाब। जो सच पूछो तो मैं फतवों से तकफीरों से डरता हूँ, खुदा के नाम पे मुल्ला की ताजीरों से डरता हूँ। वाह वाह वाह। और शेर क्या है, बहुत नजदीक से देखे हैं मैंने चाहने वाले, बहुत नजदीक से देखे हैं मैंने चाहने वाले, मैं अहले हुनर की मसनूई तौकीरों से डरता हूँ। क्या बात है। जिनसे फूटते नफरत के सोते गैज की आतिश, जनाबे हजरते वाइज की तकरीरों से डरता हूँ। और आज के दौर, सोशल मीडिया के दौर में खास शेर है, अगरचे जिंदगी अपनी खुले अखबार जैसी है, अगरचे जिंदगी अपनी खुले अखबार जैसी है, बना दे क्या से क्या लोगों की तहरीरों से डरता हूँ। अगरचे जिंदगी अपनी खुले अखबार जैसी है, क्या से क्या लोगों की तहरीरों से डरता हूँ। और नहीं है दरो दीवार के होने ना होने का, नहीं है गम दरो दीवार के होने ना होने का, बना ले रास्ता ना घर से राहगीरों से डरता हूँ। क्या बात, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया। जो अपने बन के देते हैं वफा के नाम पे धोखा, जो अपने बन के देते हैं वफा के नाम पे धोखा, अकब से वार करती उन्हीं शमशीरों से डरता हूँ। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या बात, क्या बात। और शेयर्स की है मेरी साहब, नया एक ख्वाब दिखलाते हैं मुझको रोज ये लीडर, नया एक ख्वाब दिखलाते हैं मुझको रोज ये लीडर, नहीं है शक मुझे ख्वाबों पे
ताबीरों से डरता हूँ। वाह, फिर पढ़िए। वाह, शुक्रिया। नया एक ख्वाब दिखलाते हैं मुझको रोज ये लीडर, तक मुझे ख्वाबों पे ताबीरों करता हूँ। वाह, क्या बात है। एक शेर खास तवज्जो चाहूंगा। कहीं बतला न दें ये हाल मेरा, कहीं बतला न दें ये हाल दिल मेरा जमाने को। साहब, कहीं बतला न दें ये हाल दिल मेरा जमाने को, मुसव्वर हूँ मगर खुद अपनी तस्वीरों से डरता हूँ। अच्छा। और मक्ता अर्ज करता हूँ कि बहुत खुश हूँ मुझे मौला ने दी हैं बेटियां शाहिद। बहुत खुश हूँ मुझे मौला ने दी हैं बेटियां शाहिद, क्या करूं कि इनकी तकदीरों से डरता हूँ। बहुत खुश हूँ मुझे मौला ने दी हैं बेटियां शाहिद, मगर मैं क्या करूं कि उनकी तकदीरों से डरता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम बाजवा साहब, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। तो तारफ तो ये खुद अपना तारफ आप हैं, लेकिन कंदील शेर सुखन के बदरे मुहाम ये हैं, और 9 साल हो गए माशाल्लाह ये शुमारा निकालते हुए, 4-5 किताबों के मालिक हैं। तो दावत कलाम है मोहतरम जनाब राना अब्दुल रज़ाक साहब, तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। जनाब शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ। जी आप फरमाएं, इरशाद फरमाएं। जी शुक्रिया। आप भी गर दिल से हमको प्यार करना छोड़ दें, आप भी गर दिल से हमको प्यार करना छोड़ दें, हम गिरेबानों को अपने तार करना छोड़ दें। बहुत अच्छा है। आप भी गर दिल से हमको प्यार करना छोड़ दें, हम गिरेबानों को अपने तार करना छोड़ दें। क्या बात कही है। आपके रुखसार पर है आफताबी एक तपश। वाह वाह, क्या बात, वाह। आपके रुखसार पर है आफताबी एक तपश, कुर्बतों से अब हमें बीमार करना छोड़ दे। फिर पढ़िए भाई, क्या बात है, वाह। आपके रुखसार पर है आफताबी एक तपश, कुर्बतों से अब हमें बीमार करना छोड़ दे। उम्दा तलमीद, वाह 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 वाह, क्या इस्तिआरा बांधा। लुट रहे हैं आपके हाथों से लाले बेबहा, लुट रहे हैं आपके हाथों से लाले बेबहा, आप ना इस दहर को दरदार करना छोड़ दे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सोच के जिंदा से निकली हसीना वक्त की, सोच के जिंदा से निकली हसीना वक्त की, गैर मुमकिन है कि हम दीदार करना छोड़ दें। अच्छा है। जर्मनी ऐसे बातें कर रहे हो, छोड़ देंगे आपका हम नाम लेना शेर में, क्या कहने, छोड़ देंगे आपका हम नाम लेना शेर में, आप हमसे इश्क में तकरार करना छोड़ दें। उम्दा भाई, बहुत उम्दा, वाह वाह। आ गए राणा साहब। बन के रूई उड़ गए हैं इश्क के कोहे गिरां, बन के रूई उड़ गए हैं इश्क के कोहे गिरां, आप भी उस शाख को संसार करना छोड़ दें। हम न लेंगे चारागर का नाम भी यासी कभी, हम न लेंगे चारागर का नाम भी यासी कभी, आप गर अपनी नजर से वार करना छोड़ दें। आप भी गर दिल से हमको प्यार करना छोड़ दें, हम गिरेबानों को अपने तार करना छोड़ दें। भाई बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया।
बहुत खूब राना साहब, जज़ाकल्लाह। जनाब हमीदी साहब, हमारी शाजिया आलम शाजी साहबा है। जी जी, मैं उनकी अभी बाद में उनकी बारी है, वो सीनियर शायरा हैं, मैंने देख लिया लिस्ट में, जज़ाकल्लाह। तो अब मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं हम, फिर पाकिस्तान का रुख करते हैं, उकाड़ा का। उनका एक शेर है कि हो कभी फुर्सत तो हमसे मिलने आना जिंदगी, कुछ मेरी सुनना मुझे अपनी सुनाना जिंदगी। क्या कहने, वाह वाह। प्रोफेशन के एतबार से वो टीचर हैं और नहायत उम्दा अदबी ज़ौक़ और बहुत खूबसूरत कलाम की हामिल शायरा, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। और अभी उन्होंने वो फैज़ पे मुकाला भी पेश किया, जो कि बहुत खूबसूरत उन्होंने तैयारी करके। तो मैं दावत कलाम देता हूँ मोहतरमा नजमा, ये कैमरा ऑन करो, नजमा साहिबा को, कि अपना कलाम पेश करें। कैमरा जी फरमाइए। जी जी, साहिब सदर की इजाजत से, क्योंकि ये फैज का दिन है आज, तो फैज की एक पंजाबी नस्म है। वैसे तो मेरे पास इस वक्त दो हैं, तो एक नस्म में उनकी पढ़ती हूँ। रब्बा सच्चिया, रब्बा सच्चिया तू ते आख्या सी, जा ओए बंदिया जग दा शाह है तू। साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने, साडा नैब ते आली जा है तू। इस लारे ते टोर कद पुछया सी, कि इस नमाने ते बीतियां ने, कदी सार भी लई ओ रब सच्चिया। रब साइयां तेरे नाल जग की कीतियां ने, इधों पुलिस सरकार दी है, किते धांधली माल पटवार दी है। एवें हड्डां च कल्पे जान मेरी, किवें फाही च कूंज कर लांदी है। ये फैज की पंजाबी नस्म की, ये पीछे। जी मैं अब अपनी एक गजल सुनाती हूँ। ये अलग है कि बेकरार नहीं, ये अलग है कि बेकरार नहीं। कौन कहता है मुझको प्यार नहीं। ये अलग है कि बेकरार नहीं। वाह वाह वाह, बहुत। आपका इतबार है बेशक, आपका इतबार है बेशक, जिंदगानी का इतबार है। बहुत सादगी से कहा भाई, क्या बात है। अपने गम को ना रोइए साहब, अपने गम को ना रोइए साहब, कौन दुनिया में दिल फगार नहीं। क्या बात है। मैं तेरी रूह की प्यासी, मैं तेरी रूह की शेदाई, मैं तेरी रूह की हूँ शेदाई, तेरी सूरत पे मैं निसार नहीं। बहुत खूब। मेरे लब पर मोहब्बतों का सवाल, मेरे लब पर मोहब्बतों का सवाल, उनके होंठों पे बार बार नहीं। उनके होंठों पे बार बार नहीं। इसका जीना भी कोई जीना है, इसका जीना भी कोई जीना है, जिसको इंसानियत से प्यार नहीं, जिसको इंसानियत से प्यार नहीं। हाय ये मेरी बेबसी नजमा, हाय ये मेरी बेबसी नजमा, अपने दिल पर ही अख्तियार नहीं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। जी एक गजल है। या इश्क के असबाब पढ़ाए नहीं जाते, या इश्क के असबाब पढ़ाए नहीं जाते, अदाब मोहब्बत के सिखाए नहीं जाते। बहुत खूब। कुछ काम जमाने के मुमकिन नहीं जैसे, कुछ काम जमाने के मुमकिन नहीं जैसे, शोले कभी अश्कों से बुझाए नहीं जाते। नादान ये फूलों की सजावट को बने हैं, नादान ये फूलों की सजावट को बने हैं, गुलदान में सपने तो सजाए नहीं जाते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता जो ही हर बात पे शिकवा, इस तरह ताल्लुक तो निभाए नहीं जाते। बहुत खूब।
शेर है कि है प्यार किसी से तो कहो बज़्म में, लेकिन खिलवत में ये एहसान जताए नहीं जाते। बहुत खूब, वाह 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 वाह। रखते हैं मोहब्बत में बड़ा ज़र्फ हमेशा, रखते हैं मोहब्बत में बड़ा ज़र्फ हमेशा, यूं छोड़ के जिस्मों को तो साए नहीं जाते। साए नहीं जाते। वाह 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 वाह। एक बिल से ढसी किस लिए मैं 2 बार जाऊं, एक बिल से ढसी किस लिए 2 बार मैं जाऊं, चाहत के सदा धोखे तो खाए नहीं जाते। खाए नहीं जाते, वाह वाह। नस्लों पे किया साया कड़ी धूप में जिसने, नस्लों पे किया साया कड़ी धूप में जिसने, वो पेड़ जरूरत में जलाए नहीं जाते। बहुत खूब। लगता है कि नजमा ये तकाजा है सुनो अपनी अना, नजमा ये तकाजा है सुनो अपनी अना, गिर जाएं जो आंसू वो उठाए नहीं जाते। वाह वाह वाह। गिर जाएं जो आंसू वो उठाए नहीं जाते। शुक्रिया बहुत बहुत। वाह भाई, बहुत बहुत खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे मोहतरमा नजमा महबूब नजमा साहिबा से। और अब मैं दावत कलाम देता हूँ हमारे कंदील शेर कारवान शेर सुखन के सदर जनाब बशारत रिहान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जी बशारत रिहान साहब। बहुत शुक्रिया हमीदी साहब। जनाब सदर की इजाजत से गजल के चंद अशार पेश करने से पहले मैं एक इंतहाई मुनकसर मिजाज शफीक इंसान और प्यारे दोस्त जनाब राना अब्दुल रज़ाक साहब का जिक्र भूल गया था। वो भी हमारे मेहमान हैं, आज की रौनक उन्होंने भी बख्शी। उनका कलाम सुना तो मुझे याद आया, मैंने कहा बाद में गिला ना बन जाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर लूं। तो जनाब सदर अगर आप इजाजत दें तो मैं गजल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। जी साहब। अर्ज किया है कि महफिल में मुझको गैर वो फरमा के रो पड़े, महफिल में मुझको गैर वो फरमा के रो पड़े, लब पर हंसी जब आई तो घबरा के रो पड़े। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आई कुछ ऐसी उनको मेरी उंगलियों की याद, आई कुछ ऐसी उनको मेरी उंगलियों की याद, शाने से अपनी जुल्फ वो सुलझा के रो पड़े। आज मैंने शरारत सी एक लिखी है, मैंने कहा चलो आज यही चलेगी। कुछ ऐसी उनको मेरी उंगलियों की याद, क्या बात है, शाने से अपनी जुल्फ वो सुलझा के रो पड़े। ये तस्वीर पहले कहीं बंदा हुआ नहीं देखा भाई हमने, ये पहली मरतबा। मैं समझा था ये ताजा वारदात लग रही है मुझको। बिल्कुल बिल्कुल ताजा वारदात है जी, क्योंकि इससे पहले आप सब दोस्तों ने कभी नहीं सुना होगा। मैंने कहा चलो आज इसको भी आजमा लेते हैं। महफिल में मुझको गैर वो फरमा के रो पड़े, लब पर हंसी जब आई तो घबरा के रो पड़े। आई कुछ ऐसी उनको मेरी उंगलियों की याद, शाने से अपनी जुल्फ वो सुलझा के रो पड़े। क्या बात। रास आ सकी ना बागे तमन्ना की सैर उन्हें, रास आ सकी ना बागे तमन्ना की सैर उन्हें, फूलों को रुख का आईना दिखला के रो पड़े। कितनी ही बार गुजरा है हम पर ये सानिहा, कितनी ही बार गुजरा है हम पर ये सानिहा, बाहर कभी हंसे भी तो घर आके। वाह वाह वाह, ये तो बहुत कमाल का शेर। कितनी ही बार गुजरा है हम पर ये सानिहा, बाहर कभी हंसे भी तो घर आके। वाह वाह वाह, बशारत भाई बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। झूठी कसम पर उनका ये एहसास देखिए, झूठी कसम पर उनका ये एहसास देखिए, फौरन हमारे सर की कसम खा के रो पड़े। भाई छक्के पे छक्का। झूठी कसम पर उनका ये एहसास देखिए, फौरन हमारे सर की कसम खा के रो पड़े। क्या बात। मंसूब था जो उनके हवाले से मेरा इश्क, मंसूब था जो उनके हवाले से मेरा इश्क, इस दास्ताने इश्क को दोहरा के रो पड़े। जी मैं अर्ज करता हूँ। मंसूब था जो उनके हवाले से मेरा इश्क,
اس داستان عشق کو دوہرا کے رو پڑے. اور شعر عرض کر رہا ہوں جناب قریشی صاحب. میری نگاہ شوق کی تھی بات ہی کچھ اور, میری نگاہ شوق کی تھی بات ہی کچھ اور, وہ خود کو آئینے میں نظر آ کے رو پڑے. میری نگاہ شوق کی تھی بات ہی کچھ اور, خود کو آئینے میں نظر آ کے رو پڑے. اور مکترز کے ریحان کس لیے میرے دل کو وہ آج پھر, ریحان کس لیے میرے دل کو وہ آج پھر, جھوٹی تسلیوں سے ہی بہلا کے رو پڑے. بہت اچھا, بہت ریحان صاحب توتیاں دی غیر حاضری دے وچ تسی حوصلہ کیتا ہے. بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا جی, بہت بہت زبردست. اب ہم آگے چلتے ہیں, پاکستان کا رخ کرتے ہیں پھر سے. تو کراچی میں ہمارے ساتھ شامل ہیں محترمہ شازیہ عالم شازی صاحبہ, اور بہت ہی خوبصورت شعر کہتی ہیں, بڑی سینئر شاعرہ ہیں. تو میری ان سے درخواست ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں محترمہ شازیہ عالم شازی صاحبہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج فیض احمد فیض کے سلسلے میں آپ لوگوں نے مشاعرہ رکھا ہے, تو اسی کی مناسبت سے کہ میں ایک شعر کہوں گی کہ نہ پوچھ جب سے تیرا انتظار کتنا ہے, نہ پوچھ جب سے تیرا انتظار کتنا ہے, کہ جن دنوں سے مجھے تیرا انتظار کتنا ہے. تیرا ہی عکس ہے ان اجنبی بہاروں میں, تیرا ہی عکس ہے ان اجنبی بہاروں میں, جو تیرے لب تیرے بازو تیرا کنارہ نہیں, جو تیرے لب تیرے بازو تیرا کنارہ نہیں. تو اب میں اپنی آپ کو ایک غزل سنانا چاہوں گی کہ جب بھی ملتے ہو مجھے خاص بنا دیتے ہو, جب بھی ملتے ہو مجھے خاص بنا دیتے ہو, مجھ میں چاہت کے ہنسی پھول کھلا دیتے ہو, مجھ میں چاہت کے ہنسی پھول کھلا دیتے ہو. شکریہ. سوچتی کیا ہے تمہیں ایسی شرارت آخر, سوچتی کیا ہے تمہیں ایسی شرارت آخر, شاخ پر بیٹھے پرندوں کو اڑا دیتے ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شاخ پر بیٹھے پرندوں کو اڑا دیتے ہو. کیا تمہیں کم ہے میری شمع محبت کی ضیا, کیا تمہیں کم ہے میری شمع محبت کی ضیا, میرے ہوتے جو چراغوں کو جلا دیتے ہو, میرے ہوتے جو چراغوں کو جلا دیتے ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا تمہیں کم ہے میری شمع محبت کی ضیا, کیا تمہیں کم ہے میری شمع محبت کی ضیا, میرے ہوتے جو چراغوں کو جلا دیتے ہو. بہت شکریہ. سوچتی ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے کتنی, سوچتی ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے کتنی, مہکی کلیوں کو میرا نام بتا دیتے ہو. پھر پڑھیے شعر کو جناب. بہت شکریہ جی جناب. کہ سوچتی ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے کتنی, سوچتی ہوں میں تمہیں تجھے, سوچتی ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے کتنی, مجھ سے ہے محبت کتنی, جی مجھ سے ہے محبت کتنی, مہکی کلیوں کو میرا نام بتا دیتے ہو. بہت شکریہ. مہکی کلیوں کو میرا نام بتا دیتے ہو. اور یہ شعر دیکھیے کہ عشق کے کھیل میں, عشق کے کھیل میں تم کو یہ ہنر ہے حاصل, عشق کے کھیل میں تم کو یہ ہنر ہے حاصل, ہار کے خود کو یہاں مجھ کو جتا دیتے ہو. عشق کے کھیل میں تم کو یہ ہنر ہے حاصل, ہار کے خود کو صدا مجھ کو جتا دیتے ہو. آخری شعر کے بات کرتے نہیں ہنستے بھی نہیں, بات کرتے نہیں ہنستے نہیں ملتے بھی نہیں, تم بھی کیا خوب محبت کی سزا دیتے ہو, تم بھی کیا خوب محبت کی سزا دیتے ہو. بہت خوب. جب بھی ملتے ہو مجھے خاص بنا دیتے ہو, مجھ میں چاہت کے
हंसी फूल खिला दे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे मोहतरमा शाजिया आलम शाजी साहिबा से, जो कि कराची पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल थी, और हम उनसे गुजारिश साहब करेंगे। आज बच्चों का आलमी दिन है। जी जी। तो उस पे मैंने तीसरी दुनिया के बच्चे आज एक नज़म लिखी थी। जी जी, आप पेश करें। बहुत शुक्रिया। इजाजत से पेश कर लें। जी सदर सबके सदर साहब की इजाजत होगी तो जरूर में हम पढ़ेंगे। सदर साहब जी आप जी इजाजत जी दीजिए। जी जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बहुत शुक्रिया कि तीसरी दुनिया के बच्चे इंसान अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल ख्वाब जजीरे में रहकर ताबीरों की गठरी संभाले अपने अपने खत्तों में अपने बचपन को ढूंढता जाता है। बच्चों की दुनिया दुख सुख के साथ साथ हमारे हमरा रवा दवा रहती है। माजी में बच्चे पैदा होते ही अक्सर मर जाते थे या माजूर हुआ करते थे। असरे हाजिर का रोना कुछ कम है, लेकिन बच्चों में भी गुर्बत और अमारत की तफरीक। अमेरिका और यूरोप के वो ममालिक जो अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर के हामिल हैं, अपने मुल्कों में बच्चों की सेहत और तालीम इनकी तरजीह है। काश इन बच्चों का भी कोई वारिस हो, काश इन बच्चों का भी कोई वारिस हो। हालांकि फलाही इदारे अपनी सी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तीसरी दुनिया के बच्चे, हाय तीसरी दुनिया के बच्चे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत अच्छा कलाम आपने